This is for report counseling. First of all, we will understand how to interpret the report. Report को कैसे interpret किया जाता है. Our brain is divided into two parts. First of all, one is left, second is right. Your right hand fingerprints, आपकी right hand के fingerprints shows your left brain's functionality. आपकी लेफ्ट ब्रेन की फंक्शनैलिटी बताती है और आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगरप्रिंट्स राइट की बताती है, विच इज़ द राइट ब्रेन. नाउ जो भी वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, द वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नियोकॉर्टेक्स न्यूरॉन इंटेंसिटी, विच मीन्स द न्यूरॉन्स विच आर रनिंग इन योर बॉडी, इन योर ब्रेन, विच आर कोऑर्डिनेटिंग विथ योर ब्रेन, जो बॉडी और ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसमें डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई जाएगी. इट विल शो डिफरेंट पैटर्न्स. नाउ इट विल ऑल्सो शो द रिच काउंट, द RC वैल्यू. व्हाट इज RC? दैट इज रिच काउंट. नॉर्मल रेंज, रिच काउंट का नॉर्मल रेंज होता है 8 to 30. अगर वैल्यू 30 से हाई जाता है, इफ द वैल्यू गोज हाई अबव 30, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट बहुत ही हाई फंक्शनैलिटी में काम कर रहा है. ओके, देन वी हैव द C पॉइंट. रिच काउंट वैल्यू और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस का अगर टाइप आता है 0 या आर्क टाइप, तो मिनिमम रेंज जाएगी 0 या मैक्सिमम इन्फिनिट जाती है. डिपेंड्स ऑन द प्लास्टिसिटी ऑफ द रिपोर्ट. इट सिंपली मीन्स कि वो पर्टिकुलर इंटेलिजेंस या तो बहुत लो है या हाई है, डिपेंड्स ऑन द प्लास्टिसिटी. अगर रिच काउंट 10% पे आता है, दैट्स नॉर्मल, दैट्स एवरेज. अगर 5.99 या उसके नीचे आया तो बेसिकली वो पर्टिकुलर पार्ट आपका कम है या वीक है. बट ये जो रिपोर्ट का कंपैरिजन है, ये रिपोर्ट का कंपैरिजन आपके साथ हो रहा है. The comparison is with yourself. You are not going to compare the report with anyone else. The last point, difference between the percentage of left and right brain. This report will show you the percentage of left and right brain. अगर left और right brain के बीच का जो percentage है, अगर 10% से कम आया, that means 7% से कम आया, I'm sorry, तो दोनों balanced है. अगर 7% से ज़्यादा आया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट इज़ 45% एंड राइट इज़ 55%, तो लेफ्ट और राइट के बीच में का जो डिफरेंस है वो 10% हो गया. दैट मीन्स यू आर मोर ऑफ अ राइट ब्रेन पर्सन. आपका राइट ब्रेन आपके लेफ्ट के ऊपर हावी हो रहा है. ओके, so let's start with the counseling of the report. Before we start, I would like you to go to page number 12. Understanding the human brain. Just go through it. This is prefrontal lobe. Prefrontal lobe की functionality क्या है? Center of personality and characteristic, executive functions, cognitive functions. Then we have inferior frontal lobe, center of thinking and imagination, emotions, planning, reasoning, judgment, everything. Then we have parietal lobe, center of kinesthetic, fine motor skills and gross motor skills. What is fine motor skills? Your finger movements, your eyeball movements, your eyebrows movements. What is gross motor skills? Gross motors means your hand movements, your body movement, your leg movement. Then we have the occipital lobe, center of visual functions. You see from this part, you don't see from your eyes. Your eyes are just a glass. So this is the visual functions. उसके बाद आता है temporal lobe, center of auditory functions, your hearing, memory, emotions, learning, interpreting and processing auditory are from this part. So let's start with the counseling of the report. First of all, you go to page number 7. If you see, left brain के नीचे R1, R2, R3 दिया हुआ है और right brain के नीचे L1, L2, L3 दिया हुआ है. क्यों? क्योंकि राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट ब्रेन की फंक्शनैलिटी बताता है और
लेफ्ट ब्रेन की फंक्शनैलिटी राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स बताती है. देन वी हैव, अगर आप देखेंगे यहाँ पे यू AS, ये सब आपकी फिंगरप्रिंट टाइप है. व्हाट टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट यू हैव इन R1, R2, R3. देन देर आर रैंकिंग्स गिवन. Then we have percentage. Now how percentage are divided? If anything which goes to 10% or above, that is your strengthful part. वो आपका strength होगा. Average is between 9.99 to 8. वो आपका average होगा. और weaker part होगा 7.99 या 0 के बीच में. So let's start with the first rank. First rank we have visual ability 19.39%. विजुअल एबिलिटी का मतलब है कि आप कितनी अच्छे से दूर से देख सकते हैं. आपका जो इमेज अप्रिसिएशन है, कलर, साइज, शेप, पैटर्न, किस तरह से आप पहचानेंगे, दैट इज़ विजुअल एबिलिटी. सो आई वुड से दिस पर्सनस विजुअल एबिलिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट इज़ ऑन द फर्स्ट रैंक. यहाँ पे सिर्फ आपको उनकी स्ट्रेंथ बतानी है. यू हैव टू टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दे possess. Then the second rank goes to linguistic, which is language and listening ability, 14.44%. These are just the brain lobes functionality, लेकिन मैं यहाँ पे intelligence को भी connect करूँगी. So second rank जाता है language और listening ability. ये होता है आपका linguistic intelligence, linguistic word smart, जिसमें parts of speech, verbal memory, ये सब बहुत अच्छे से आपका process हो रहा है. This is on the second rank. Then third rank goes to observation and reading ability, 14%. That is your naturalist power, nature smart. आपकी जो distance, speed, size, ये बहुत अच्छे से आप observe करते हैं. जैसे कि I would say for example आपका driving काफ़ी अच्छा होगा अगर आपका observation and reading ability अच्छा है. Then we have the fourth rank, which goes to creativity and interpersonal ability. That is 10.32%. That means your interpersonal skills, the way you talk to other people, दूसरों से बात करना, दूसरों की feelings को समझना, spontaneous, socialized रहना, ये सब criteria में आता है. उसके बाद we have fifth rank, which is musical and emotional feeling ability, 8.98%. Now this is kind of an average. जैसे कि म्यूज़िक सुनते सुनते आप एक इमोशंस को ध्यान में रखते हुए when you listen to music and you get a peace of mind is called musical and emotional feeling ability. Slowly यहाँ से सारे average and then weak part start होंगे. Make sure आप ये सब कुछ उन्हें डिटेल में बताएं. जैसे कि सिक्स्थ रैंक जाता है लॉजिकल एंड एनालिसिस एबिलिटी विच इज़ लॉजिक स्मार्ट 8.95. दैट मीन्स इनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन हम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, अपनी स्ट्रॉन्गर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम इसे स्ट्रेंथफुल बना सकते हैं. हाउ, मैं आपको इंटेलिजेंस में बताऊंगी when we go through the intelligences. Then we have the seventh rank, which is organization and management ability, 8.26%. Again that is average. ये इंट्रापर्सनल स्किल्स होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से करते हैं, प्लानिंग, रीजनिंग, जजमेंट काफ़ी अच्छा है आपका. दैट इज़ ऑन अ एवरेज साइड. Then the eighth rank goes to fine motor skills, that is 5.62, which is the weaker side. That means small muscle coordination, fingers, eyebrows, left right direction, mirror movement, ये थोड़ा weaker part होगा. And the ninth is gross motor skills, 5.39. That means muscle coordination. Please ध्यान में रखिए, this is small muscle coordination and this is just muscle coordination. That means your hand movements, your body movements while dancing, while playing sports, ये थोड़ा weaker part रहेगा. And the 10th rank goes to visual spatial imagination, 4.67%. 4.67% means it's on a weaker side again. Now what you have to understand here is, so about visual spatial and imagination ability, that's the weaker part. That visual spatial means basically आपका 3D imagination. When you draw something, you imagine something first. For example, astronauts when they go to space or maybe they go to out of Earth,
they imagine, they visualize everything on a paper and then they try to execute it. So this is visual, spatial and imagination ability. That means your imagination power, your visualization. So this is all about the brain lobes functionality and distribution map, about what is the strengthful part, what is the weaker part. That's it. उसके बाद आता है TFRC. TFRC means total fingerprint rich count, which is 132. Now what does TFRC shows? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स जाते हैं जो मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन से बॉडी तक. अब TFRC बताता है कि वो जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं वो कितनी कैपेसिटी में जा रहे हैं. अगर थोड़े से जा रहे हैं टू सेंड द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी, तो आपका लो पोटेंशियल आएगा. दैट मीन्स द न्यूरॉन्स आर गोइंग लेस इन क्वांटिटी. दैट मीन्स यू विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जब भी आप कुछ समझा रहे हैं, आपको कोई समझा रहा है या आप कुछ समझना चाहते हैं, तो आप बार बार क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि जो मैसेज पहुंच रहा है वो आराम से एक एक करके पहुंच रहा है. राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड, दिस इज़ जस्ट द कैपेसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर कोई ओवर एक्टिव या एक्सीलेंट पोटेंशियल में आएगा तो वो काफ़ी हद तक बहुत ही हाइपर एक्टिव होगा, हर एक चीज़ बहुत ही जल्दी समझना, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना. तो मेक श्योर कि उन्हें एडवाइस करें कि ओवर एक्टिव हो या एक्सीलेंट पोटेंशियल हो, तो मेक श्योर यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, यू हैव टू गो लिटिल स्लो. एंड फॉर लो पोटेंशियल या एडिक्वेट पोटेंशियल, you have to advise them that you have to be particular in asking questions again and again. If you ask questions, then you'll get an answer correctly, क्योंकि आपके neurons की capacity थोड़ी कम है. So this is how we need to explain in TFRC according to the type. Then we have left and right brain percentage. Left brain is 51.27% and right brain is 48.73%. That means the difference between left and right is 3 or 4%. That means it's balanced. अगर balance नहीं होता, for example someone is left brain dominant more, so you need to explain these things, that you have to also be right brain dominance to be more creative, brain more inclined towards interpersonal skills, imaginations, cross motor skills. And if someone is more of right brain dominant, अगर बहुत right brain dominancy में आता है, तो you have to explain these things. This report is a very explanatory, a very user friendly, I would say. You will get all the answers, you will get all the recommendations from the report itself. So this makes the counseling very easy. Then we have, this is not your part, this is more of in detail for left and right brain. So let the client which is sitting in front of you, let them read all this thing, not you. Okay? Then we have let's go to page number 14. Over here if you see, the highest part is occipital lobe, which is 33.39%. Why? Because in this report I would say the observation and reading ability part is high. This is the occipital part. That's why occipital का percentage high rate पे है. So this is how we need to engage the report. This is something which you don't have to tell to the client when you're counseling the report, because this is more of a scientific words which have been used here. So make sure this is just for you, this is just for your knowledge. Alright, prefrontal lobe, L1 and R1 is prefrontal, L2 and R2 is inferior frontal, L3 and R3 is parietal lobes, L4 and R4 is temporal lobe, L5 R5 is occipital lobe. Alright, then we have ATD. What is ATD? Now as I said, TFRC बताता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है न्यूरॉन्स की. ATD बताता है कि आपका स्पीड कितना है न्यूरॉन्स का, कितनी स्पीड में इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है. सो इफ़ समवन हैज़ लेस देन 35, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी का 35 या उसके नीचे आया तो काफ़ी हद तक स्पीड में जा रहा है न्यूरॉन्स.
सो आपको एडवाइस देना है, यहाँ पे रिकमेंडेशंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, दैट व्हेन यू फेसिंग एनी इशू, कोई भी चीज़ को रिलैक्स माइंड से ध्यान में रख के कीजिए, क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं. सो यू विल बी वेरी हाइपर एक्टिव. मेक श्योर यू ऑलवेज कीप अ स्मॉल नोटबुक. कोई भी चीज़ नोट डाउन कीजिए ताकि वो याद रहे, आप तुरंत भूल ना जाएं. अगर 35 से 40 के बीच में आता है तो इट्स अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल रेंज है. दैट मीन्स आपको उन्हें एडवाइस देना है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का यूज़ कीजिए, आपकी स्ट्रॉन्गर इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिए, बिकॉज न्यूरॉन्स की स्पीड परफेक्ट है. 35 to 40 इज़ परफेक्ट. 41 to 45 आया तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा न्यूरॉन्स का स्पीड. सो यू हैव टू गो विद स्टेप बाय स्टेप लर्निंग. आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना पड़ेगा. और मेक श्योर कि जब आप सीखें तो एक डिज़ायर होना चाहिए टू लर्न, एक मोटिव होना चाहिए टू लर्न. इफ़ यू डोंट फील लाइक लर्निंग, इफ़ यू डोंट वांट टू, इफ़ देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग, आपके न्यूरॉन्स की स्पीड इतनी कम है कि यू वोंट बी एबल टू लर्न. सो मेक श्योर यू हैव अ डिज़ायर टू लर्न एनीथिंग. देन समवन हु हैज़ लेस हायर देन 46, दैट मीन्स वो बहुत स्लो होगा, तो उन्हें फिज़िकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है. मेक श्योर कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करें अप्रोप्रिएटली, ताकि व्हेन यू डू सम फिज़िकल एक्सरसाइज तो आपके न्यूरॉन्स की स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है एंड यू विल बी एबल टू लर्न प्रॉपर्ली. देन दिस इज़ अबाउट ATD. देन वी गो टू द नेक्स्ट पेज. EQ, IQ, AQ and CQ. Just make sure you note it down. EQ, what is EQ? Your interpersonal plus intrapersonal equals to इमोशनल क्वेश्चन. अगर आपका इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल अच्छा है तो आपका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा है. व्हाट इज़ इंटेलिजेंस क्वेश्चन? योर लॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक. अगर आपका अच्छा है तो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन अच्छा है. एडवर्सिटी, अगर आपका नेचुरलिस्ट और बॉडीली काइनेस्थेटिक अच्छा है तो आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन अच्छा है. क्रिएटिविटी क्वेश्चन, अगर आपका म्यूज़िक अच्छा है और विजुअल स्पेटल अच्छा है तो आपका क्रिएटिविटी अच्छा है. दिस इज़ हाउ वी नीड टू गेज. अगर किसी में भी कम या ज़्यादा आता है, 20% के नीचे आया तो वो कम है, 20% के ऊपर आया तो वो बैलेंस्ड है हर एक जगह पे. सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर कहीं पे भी 20% से नीचे आया, फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशनल क्वेश्चन में नीचे आया, तो हम उन्हें एडवाइस करेंगे कि अपना इंटर और इंट्रा बढ़ाएं तो आपका इमोशनल क्वेश्चन बढ़ेगा. इंटर और इंट्रा कैसे बढ़ाना है मैं आपको इंटेलिजेंसेस में बताऊँगी. Then we have personality and behavior. This is very explanatory. Your personality is dove, तो हम dove के पार्ट पे जाएंगे. हर एक में दिया हुआ है. पहले तो हम will make sure we'll tell them what are your type, what is the type of your personality. You're compassionate, peaceful, people oriented, loyal, friendly, hardworking and great team player. उसके बाद हम उसकी strength और weakness बताएंगे, वो बहुत ज़रूरी है. Strength और weakness बताएंगे. उसके बाद we will tell them the recommendations, what you need to do. Think about yourself for a change and put your needs first. What do you want? This is all recommendations. This is all self-explanatory. You need to tell them, and you just have to read all these things and you have to explain them. Then we have communication style. Communication style, there are 4 types of communication style. One is cognitive learner. Cognitive learner मतलब independent learner. काफ़ी हद तक independent और strong रहता है ये लोग. उसके बाद अफेक्टिव लर्नर आता है. अफेक्टिव लर्नर इज़ इमिटेटिव लर्नर, मतलब किसी को कॉपी करके सीखना, विच इज़ अफेक्टिव लर्नर. उसके बाद आता है रिवर्स लर्नर. रिवर्स लर्नर इज़ ए नॉन ट्रेडिशनल लर्नर, मतलब हमेशा उल्टा करना. हमेशा कोई भी चीज़ में 10 लोग अगर हाँ बोल रहे हैं तो 11वां ना बोलेगा. 2000 काफ़ी उल्टा सोचते हैं ये लोग, लेकिन डिफरेंट सोचते हैं, बहुत सबसे अलग सोचते हैं. उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लर्नर, जो दूसरों पे रिलाई रहता है, हमेशा दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहता है, कभी भी अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं रहता. राइट. सो यहाँ पे हम किस तरह से गेज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 30% दिया हुआ है, यहाँ पे 0% है, यहाँ पे 30% है और यहाँ पे 40 है. तो जो हाईएस्ट परसेंट है वो आपका टाइप है. सो ये आपका टाइप है, ये आपको बताना है. फॉर एग्जांपल आप कॉग्निटिव लर्नर हो, सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, इंडिपेंडेंट, लाइक टू लीड अदर्स, टेंड टू एनालाइज, क्लासीफाई, टेस्ट, अप्लाई एंड रिसर्च. थ्योरी ऑफ मैटर अगर एक्सप्लेन की जाए, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस
टू गेट कन्विंस्ड ऑफ कोर्स. और recommendations क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे recommendations भी हमने दिए हुए हैं ताकि आपको अपने वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं. So to be more caring, more encouraging, put oneself in each other's shoes so that others feels appreciated. Make sure कि अपनी interpersonal बढ़ाएं, थोड़ा negative view कम रखें. बहुत सारी डिटेल में हमने चीज़ दी हुई है. So जो भी परसेंटेज ज़्यादा आएगा वो आपको समझाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर 50-50 परसेंटेज आता है तो दोनों आपको समझाना है. वो टाइप दोनों है उनकी, तो दोनों के recommendations आपको उन्हें समझाना है. Then we have माई लर्निंग स्टाइल. नाउ जो भी हाईएस्ट लर्निंग स्टाइल आएगा, यहाँ पे विजुअल लर्नर है तो आपको उन्हें बताना है कि मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं लर्न इट विजुअली, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग विच यू विल बी एबल टू लर्न बाई डूइंग इट विजुअल. अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो हमने लर्निंग टेक्निक्स भी दिए हुए हैं. यू कैन एक्सप्लेन देम. दीज आर द लर्निंग टेक्निक्स. लेट देम रीड द लर्निंग टेक्निक्स. एंड देन उसके बाद आता है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इज़ लाइक वेरी इजी. जिस तरह से हमने एक पीपीटी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि व्हाट आर द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, सो यू नीड टू एक्सप्लेन देम व्हाट आर देयर हायर इंटेलिजेंसेस. लोअर के बारे में बात नहीं करनी है बिकॉज दैट्स ऑफ नो यूज़. जो भी 12%, 11% या 12% से हाई आएगा वो उसकी हायर डोमिनेंसी है. यहाँ पे लिंग्विस्टिक 17.51%, नेचुरलिस्ट which is 16.98%, visual spatial 14.58%, interpersonal 12.52%. तो ये सारे मार्क डाउन करके उन्हें बताना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है कि हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई कहे कि मेरा लॉजिकल कम है, मुझे वो बढ़ाना है, तो मेक श्योर कि आप ग्रुप में पढ़ाई कीजिए, इंटरपर्सनल का इस्तेमाल कीजिए. या फिर मेक श्योर कि आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहिए, क्योंकि आप नेचर स्मार्ट हो, तो मेक श्योर कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रहिए ताकि आप मैथ्स अच्छे से कर सकें. राइट. अगर और भी डिटेल में जाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. इनका अगर लॉजिकल कम है तो हमने उसे बढ़ाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी सारी फिलअप की हुई है. सो यू हैव टू टेल देम टू गो थ्रू दीज एक्टिविटीज़ टू डेवलप द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसेस. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इंटेलिजेंसेस. आपको उन्हें एक्सप्लेनेशन देना है कि इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ किया जाता है. पहले उन्हें समझाएं और फिर उन्हें इंटेलिजेंस के बारे में बताइए. देन वी हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी विच इज़ द हाइएस्ट इज़ फॉरेन लैंग्वेज 14.44%. तो आप पढ़ने और जॉब करने के अलावा व्हाट कैन यू डू, व्हाट हॉबीज़ कैन यू जॉइन. सो वी हैव ऑल्सो गिवन दैट यू कैन प्ले चेस or you can join a singing class, because according to your intelligences हमने ये extra curricular activity बताया है. उसके बाद career options में हमने ratings दिए हुए हैं. This is very simple. if 5 star आता है किसी का तो you have to advise that you must go in that field. किसी का 4 star आता है तो you have to advise that you should go. किसी का 3 star आता है तो you can go. 2 स्टार होता है तो यू मे नॉट. 1 स्टार होता है नॉट एडवाइसेबल. फिर भी अगर वो जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजीनियरिंग में 1 स्टार है, लेकिन फिर भी अगर वो जाना चाहता है तो मेक श्योर उन्हें एडवाइस दें कि अपनी इंटेलिजेंसेस का इस्तेमाल कीजिए वाइल लर्निंग दीज थिंग्स. इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, बस थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा उन्हें सीखने में. मेक श्योर कि आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें ताकि आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से सीख सकें. That's it. If at all they have any other questions, you can let me know. This is all about how to do the report counseling. I would like you to get more questions for me and mail it to me and we can discuss. Thank you so much.